یسوع مسیح کے بابرکت ازلی ابدی اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی۔ اور خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج اس کے سبت کے دن میں اس نے ہماری محافظت کی، ہمارے ساتھ رہا، اور آج شام بھی ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں سلامتی بخشی کہ ہم اس کے حضوری میں حاضر ہو کر اس کی ستائش کریں، وڈیائی کریں، حمد کریں، اور پھر اس کی زندگی بخش آواز کو سن کر اس سے برکت پائیں۔ آج ہم وائز کی کتاب میں سے 11واں باب ہے اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو پہلے پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں سے، خدا کی روح القدس کے وسیلہ سے جو بھی جیسے بھی ہمیں وہ سکھانا چاہتا ہے، ہم اپنی تربیت کے لیے، تنبیہ کے لیے اور بہتری بھلائی اور برکت کے لیے خدا سے سیکھیں گے۔ 9ویں 10ویں خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، اپنی بطالت کی زندگی کے سبب، زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے 11 باب سوری اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ بس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ آمین۔ آمین۔ کلام اقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے، کھولے اور غور کیے جانے پر خدا کی برکت ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر۔ میرے عزیزو، یہاں پر حکمت کا بادشاہ سلیمان نبی ایک بہت زبردست، عمدہ اور ایسی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے جس کے اندر اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ مسیحی گھرانے کے اندر، مسیحی گھرانے کے اندر بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور نوجوان ہیں۔ وہ بیٹی کی صورت میں ہے، وہ بیٹے کی صورت میں ہے، نوجوانی کی حالت میں ہے۔ اور خدا کے بندہ کو جو سب سے خطرناک حالت، جو ابلیس جس کو استعمال کر سکتا ہے، جس کو جھانسے میں لا سکتا ہے، جس کو کنٹرول میں لے سکتا ہے اور اس کی سوچ کو، اس کے دل کو، اس کے خیالوں کو اپنے قبضہ میں لے کر اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے بآسانی، وہ جوانی کی حالت ہے۔ اور اس خطرے کو بھانپتے ہوئے جب اسے یہ بات محسوس ہوئی ہے، جب اسے یہ پتہ چلا ہے، تو اس نے ایک زبردست بات یہاں پر کھولی ہے اور کہتا ہے کہ اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہمارے بچے اور ہمارے بھائی جوانی کے ایام میں ہوتے ہیں تو ان کا بیٹھنا اور ان کا چال چلن اور ان کی دوستی اور ان کی بیٹھک جو ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، گھر کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ باہر ہی باہر اپنے دوستوں اور اپنے ان یاروں کے ساتھ جب بیٹھتا اٹھتا ہے تو وہی جو صحبت وہ کام کرتے ہیں، جیسے کام اور جیسی روش اور جیسے خیال ان کے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے سارے کام اس بیٹی اور بیٹے کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اب معاشرے کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا دوست ہے، جو اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، ہر کوئی ہماری سوچ کے مطابق ہو۔
ज़्यादातर हमारा मसीही ख़ानदान जो है, माँ बाप जो हैं, वो ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है कि अपने बच्चों की इस निगहबानी जो उनको उनके दोस्तों के वसीला से करनी चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए, उनके बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि वह कैसे लोगों से मिलता है, किन लोगों के साथ बैठता है, किन से मुलाकात करता है, कैसे कैसे चाल चलन चलता है। इस बारे में बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर जा रहे हैं और कोई इस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करता कि हमारा बच्चा बाहर किसके साथ बैठता, चलता फिरता, खाता पीता। और इसी खतरे को भांपते हुए खुदा का बंदा सुलेमान नबी यहाँ पर बयान करता है, जवानों को तलकीन करता है कि ऐ जवान, अपनी जवानी के अय्याम में तू अपनी आंखों की मंजूरी में चल फिर, क्योंकि जवानी के अय्याम ऐसे हैं कि जब अबलीस आसानी अपने छलावे, अपने बहकावे और झूठी तस्वीरें और झूठे बहकावे और झूठी बातें डालकर, दिखाकर आसानी जो है वो अपने कंट्रोल में करके अपनी मर्जी के साथ चलाना शुरू कर देता है। और फिर होता क्या है कि तब जब किसी जवान को तलकीन की जाए, जब उसे समझाया जाए, उसे कहा कि जाए कि तेरा बैठना उठना ठीक नहीं है, जिस सोसाइटी में तू अपने दोस्तों के साथ बैठता है, ये काम करता है, वो गलत है, इससे बाज आ, तो वो क्या करता है कि वो आगे से बोल चाल करके, आगे से बदतमीजी करके जवाब देता है कि आपको क्या पता है मैं कहाँ पर जाता हूँ, कैसे बैठता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ठीक हूँ, अच्छे तरीके से चलता हूँ। और उसको ये पता नहीं होता कि जो काम मैं असल में कर रहा हूँ, जिस काम में मैं पड़ा हुआ हूँ और जिन दोस्तों के अंदर मैं जैसे भी जिस काम के अंदर मुब्तला हो चुका हूँ और जो वो करते हैं मैं भी उनके साथ करना शुरू हो गया हूँ, तो वो काम असल में मेरे लिए फायदा मंद है या नुकसानदेह। उस वक्त के अंदर, उस जोश के अंदर, उस आलम के अंदर, उस वक्त के अंदर और जवानी के उस जोश के अंदर उसको ये इन बातों का कोई हकीकत के साथ उसको पता नहीं होता, हकीकत से उसकी वाकफियत हरगिज नहीं होती। और उस वक्त जो उसके जहन में आता है, जो उसके ख्याल में आता है, उस वक्त वही करता है, ना किसी की मानता, ना किसी की सुनता है, और वो काम करता है जो उसके दिल को अच्छे लगते हैं। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवानी के याम, जैसे मैंने आपको अपनी गवाही भी बताई कि दोस्तों के साथ बहुत सोसाइटी में फिरते हुए और दुनिया के माशरे के अंदर जाते हुए बहुत ऐसी बातें और ऐसे रवैये, ऐसा चाल चलन और ऐसी घिनौनी बातें हमारे सामने आती हैं कि हम उनको सोच कर भी आज कांप उठते हैं कि वो कैसी बातें थी और कैसे दिन थे। और यहाँ पर खुदा का बंदा इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बयान करता है कि होगा जवानी के अयाम में ऐसा होगा कि तू खुश भी होगा अपनी उन दिनों के अंदर, अपने कामों के वसीला से उन कामों को करके खुशी ज़ाहिर करेगा और तू खुश होगा और फिर अपनी आंखों की मंजूरी में और अपने दिल की मंजूरी की बातों को मानेगा। जो तेरे दिल में आएगा, जो तेरी सोच को अच्छा लगेगा, जो तेरी आंखों को अच्छा लगेगा, तू वो ही करेगा। और मेरे चीजों, हम देखते हैं यहाँ पर उसने कहा कि खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, जो और अपने दिल की राहों में और उसकी अपनी आंखों की मंजूरी में चल। अब जो बातें दिल और ख्याल और जहन के अंदर उस वक्त आती हैं, वो कहता है कि बेशक तू चल ले। अगर कोई तुझे रोकता है तो किसी की बात तो नहीं मानता, तू अपनी मंजूरी में, अपनी आंखों की मंजूरी के अंदर और दिल के ख्यालों के मुताबिक चल कर देख ले। लेकिन एक बात याद रख ले और एक बात को दिल में रख ले कि इन सब बातों की बदौलत खुदा तुझे अदालत में लाएगा जो तू कर रहा है। और लिखा हुआ है, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी से अपने जिस्म से निकाल दे, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल है, जाते रहेंगे। लड़कपन और जवानी 4 दिन की चांदनी है और फिर उसके बाद ये ढल जानी है। और फिर जब तुम उस उम्र के हिस्सा में आओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो कुछ करते रहे हो, जो कुछ होता रहा, वो सब का सब गलत था। खुदा का बंदा बयान करता है कि बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं,
12वें बाब के शुरू में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जब वो दिन आएगा जब तेरी उम्र ढल जाएगी, जब तू बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा और जवानी के ऐसे लम्हे के अंदर आ जाएगा कि तू मैच्योरिटी के अंदर तेरी सोच बड़ी और बड़ी उम्र सीधा वाली सोच हो जाएगी। जब तू पुख्ता सोच वाला हो जाएगा, जब तू बड़ी उम्र का हो जाएगा, तो फिर तुझे याद आएंगी, तो फिर कहेगा वो जो बातें हैं, वो जो सोचने की घड़ियां जो मैं करता रहा था, उनसे अब मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उम्र ढल जाती है, जब उम्र गुजर जाती है, जब बंदा बुढ़ापे में चला जाता है, जब बंदा उम्र के उस हिस्सा में चला जाता है कि हर एक चीज जो है वो बोझ मालूम होती है, तो वहां पर खुदा का बंदा बयान करता है 12वें बाब की दूसरी आयत के अंदर, जब हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं। अब ये सारी की सारी चीजें इंसानी जिस्म के अंदर से बयान की जा रही है। यहां पर कहा गया सूरज और उसकी रोशनी और चांद सितारे तारीक हो जाएं। हमारी जो आंखें हैं ये इनके अंदर रोशनी है, और ये रोशनी के वसीला से हर एक चीज को देखती हैं। तो फिर जब वो वक्त आएगा, हमारी उम्र ढल जाएगी, तो ये सूरज और चांद की रोशनी जो हमें दिखाई देती है वो तारीक हो जाएगी। और फिर बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज के निगहबान थरथराने लगे। घर के निगहबान होंठों को कहा गया है, जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरे होंठों पर निगहबान बिठा, पहरेदार बिठा। घर का निगहबान जो है वो होंठ है, इसको निगहबान कहा गया है। जब ये बोलते हुए थरथराने लगे, जब उम्र का तकाजा हो, जब उम्र गुजर जाए, बूढ़ा हो जाए इंसान, और बोलते हुए आदमी इतनी कमजोरी की हालत के अंदर को ये लब भी थरथराने लगे, कांपने लगे बोलते हुए भी, तो उस हालत के अंदर और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएं। जब जवानी डाल जाते हैं, जब उम्र सीधा बंदा हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कमर जो है वो झुक जाती है और वो कुबड़ी हालत के अंदर आ जाते हैं। और पीसने वाली रुक जाएं। दांतों को कहा गया पीसने वाली। जब आदमी उस उम्र के हिस्सा में चला जाता है, तो ये दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे दांत निकल जाते हैं। और लिखा है कि पीसने वाली रुक जाएं। अब जो दांत हैं वो खाने पीने के काबिल नहीं रहते, वो खुराक को चबा नहीं सकते, वो खा नहीं सकते, और रुक जाते हैं। फिर ऐसी खुराक मिलती है जो आसानी के साथ हम निगल सकें, दांत इस काबिल नहीं रहते। फिर लिखा है पीसने वालियां रुक जाएं, कि वो थोड़ी सी हैं। फिर एक एक करके डिगते जाने ने, फिर जो थोड़े जे 4-5 रह जाते हैं ना, फिर कहते हैं जो वो थोड़ियां ने, पीसने वाली रुक जाएं क्योंकि वो थोड़ी सी हैं, थोड़े से रह गए हैं, गिर गए हैं। और जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं। खिड़कियों से, ये ऊपर जो पुतली आंखों की ये खिड़की है, और खिड़कियों के अंदर से ये आंखें झांकती हैं, आंखें देखती हैं। आंखें हर तस्वीर को, हाँ वो झूठी है, वो असली है, वो नकली है, हर एक तस्वीर को, हर एक झांसे को, हर एक असलियत को आंखें देखती हैं। और खुदा का बंदा कहता है कि खिड़कियों से जो झांकती हैं, जब वो भी धुंधला जाएं और गली के कवाड़े बंद हो जाएं। ये गली के कवाड़े हैं, कान। गली के कवाड़े, खिड़कियां जो होती हैं, जो रोशनदान होती हैं, उनसे हमें बाहर की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। बाहर गली में आने जाने वाले लोगों की आवाज़ें खिड़कियों के रास्ते से हमें सुनाई देती हैं। और ये कान इस जिस्म के अंदर आवाज़ पहुंचाने के लिए ये गली के कवाड़े हैं। खुदा का बंदा कहता है जब गली के कवाड़े बंद हो जाएं, जब इनसे भी सुनना बंद हो जाए, फिर कन्ना दे विच आके किसी नूं आवाज़ देनी पैंदी है, बाबा जी चाह पी लो। फिर पता चलता कि नहीं इन्हें चाह लुकिया। वो कई दफ़ा तो साढ़े बजुर्ग ने उन्होंने कहा ना रोटी खा लो, नहीं मैं कपड़े तो मैं चला, मैं कुड़ी को चला वा बड़ी को, चाह पी लो। नहीं मैं ठीक हाँ, से ठीक है मेरी। पूछते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। वजह क्या है? खुदा का बंदा कि जब कहता है जब गली के कबाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए,
और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं। नगमा जो है, नगमा की बेटियां ज़ुबान को खा गई। जब ये भी ज़ईफ हो जाए, जब बोलने के काबिल ना रहे और आवाज धीमी हो जाए, फिर जो बात मुंह से निकलेगी उसकी भी समझ पूरी नहीं होगी। और चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अवधी मकान में चला जाएगा। आखिर को इंसान की ये कंडीशन है कि वो अवधी मौत के अंदर चला जाएगा, कब्र के अंदर चला जाएगा। लेकिन खुदा का बंदा कहता है, ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम न कर। गम करने के लिए अब मौका आपके पास है। गम नहीं करना, क्योंकि अभी सांसें हैं, अभी जिंदगी है, तो आपके पास मौका है। जिंदगी है, मौका है, खुदा की ज़ुरिया इबादत है, कलाम है। मौका है कि आज ही अपनी रविशों को, अपनी उन बातों को, अपने उन ख्यालों को जो खुदा से हमें दूर करते हैं, जो हमें बदी की तरफ रागब करते हैं और जो हमें गनौनी और बद किरदारियों की तरफ माइल करती हैं वो बातें और वो बहकावे छलावे जो इब्लीस हमें दिखाता है, उनसे बाज आकर हम आज अपने आप को बदलें। और फिर लिखा हुआ है कि बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल। बदी जब हम अपने जिस्म से निकाल देते हैं, बदी को जब हम अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं, अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं, तो फिर कलाम इक़दस में लिखा हुआ है, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं, ये फानी है, ये मिट जाने वाली और ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वाइज नबी ये लिखता है कि आज ही मौका है। अब अगर हमें सांसें और ज़िंदगी मिली हुई है तो आज मौका है कि हम तौबा कर लें और अपने आप को बदल लें और अपने अंदर से बदी को निकाल डालें, ताकि हम खुदा की ज़ुरी के लायक बन जाएं। यहाँ तो हमने ज़िंदगी गुजार ली, जैसे भी गमों, खुशियों और धूप छाँव के अंदर ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन ये सोचे कि आगे जो हमें हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा की मौत मिलने वाली है, उनमें से हम किस चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आज ख्याल करें, वो कौन सी चीज़ हम लेना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, पहले तीमुथियुस के खत के अंदर 4 बाब की 2 आयत को कलाम इक़दस में से पढ़ते हैं। जब हम इस हालत में होते हैं, जवानी की हालत में, तो खुदा का बंदा पौलुस इस बारे में नसीहत करके क्या बयान करता है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। क्या बनना है? नमूना बनना है। कैसे बनना है? कोई हमारी जवानी की हकारत ना करने पाए। हमारा चाल चलन, हमारी रवश, हमारे ख्याल, हमारी बातें ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे इबादत में रोज आते हैं और दुआ करते हैं, तो ये ना कोई कहने पाए कि ये रोज दुआ करने वाले, रोज कलाम को सुनने वाले, रोज इबादत करने वाले हैं, और ये लोग इस तरह की हरकतें, ऊट पटांग काम करते हैं, उल्ट पुल्ट फैशन करते हैं और उल्ट पुल्ट बातें करते हैं। ऐसी बातें कोई तेरी जवानी के अंदर से तलाश ना करने पाए। किसी को हरगिज़ तेरी जवानी से ऐसी बातें ना मिलें कि कोई कहे कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है। मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, बेटियों, जब कभी ऐसा होता है, जवानी का आलम ऐसा होता है कि इंसान बहुत दफा ये जो जवानी की हालत बेटे बेटियां वो जरूर सोचेंगे कि जब हम इस अयाम के अंदर होते हैं, जब इस आलम के अंदर होते हैं, तो बहुत दफा हमें हमारे जहन के अंदर खुदा का रूह दरवाजा खटखटाता है, हमें बताता है कि हमें दुआ करनी है, हमें कलाम पढ़ना है, हमें रास्तबाजी पूरी करनी है, हमें खुदा के साथ चलना है, हमें तौबा करनी है, यीशु मसीह हमारा निजात देंदा है। बहुत दफा ये बातें आती हैं, लेकिन इंसान जवानी के आलम में इनको पूरा करने के लिए तैयार भी हो जाता है, सोच भी लेता है, इरादा भी कर लेता है कि मैं कलाम पढ़ूंगा, मैं दुआ करूंगी और मैं
चर्च जाऊंगा और मैं बाइबल को अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तौबा कर लूंगा, अपनी जवानी के याम में खुदा के साथ चलूंगा। और इरादा करता है, सोचता है, ख्याल करता है, लेकिन चल नहीं पाता। वजह क्या होती है कि जब कभी वो ऐसा सोचता है, दूसरी तरफ से इब्लीस की तरफ से और जोर के साथ हमले होना शुरू हो जाते हैं, और जोर के साथ वो हमले करके उनको उसी घड़ी उनकी सोच को तहस नहस करके फिर अपने कब्जे में ले लेता है। और वो जो इंसान जिसने इरादा तहिया किया होता है, रात को इरादा करता है सब कुछ दुआ करने का, चर्च जाने का, कलाम पढ़ने का, तौबा करने का, सुबह फिर उन्हीं बातों, उन्हीं रविशों, उन्हीं ख्यालों के अंदर पड़ा होता है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस भी कहता है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बने। रास्तबाजी, ईमानदारी की सब बातों के अंदर तू नमूना बने, तेरी मिसालें दी जाएं, तेरे बारे में कहा जाए कि देखो ये बंदा भी कभी गुनाहगार हुआ करता था, ये बंदा भी कभी घिनौना और बदकिरदार हुआ करता था। आज देखो खुदा ने इसे को कैसा बदला हुआ है, आज देखो ये कैसा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आज देखो ये कैसा कलाम सुना रहा है, आज देखो ये कैसा जिंदगियों को बदलने वाला बन गया, आज देखो इसके वसीला से कैसी जिंदगियां चेंज हो रही हैं, कैसे ये लोगों को खुदा की तरफ ला रहा है। और लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करे, बल्कि तेरी बातों को देखकर, तेरे चाल चलन को देखकर, तेरे रवैयों को देखकर नमूना बन, ताकि वो तेरी गवाही का बायस बन जाए। लोग अपने मुंह से कहें कि ये भी कोई बंदा ऐसा था, अब देखो कैसा रास्तबाज बन गया। दूसरे तिमोथेयुस के खत के अंदर 2 बाब की 22 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। अब जवानी की ख्वाहिशें क्या होती हैं? शुरू में कलाम में हमने आज सुना कि जवानी की ख्वाहिशें क्या होती हैं। जब बंदा इस आलम के अंदर होता है तो अपनी आंखों की मंजूरी, अपने दिल के मुताबिक, अपने ख्यालों के मुताबिक जो उसे अच्छा लगता है वही करता है। ना वो अपने टीचर की मानता है, ना अपने बड़ों की मानता है, ना किसी के असर करता है। वक्ती तौर पर कहेगा ठीक है जो आप कहते हैं वो करूँगा, लेकिन फिर वो जब अपने दोस्तों, अपनी सोसाइटी के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठता होता है तो फिर उसका वही रवैया हो जाता है, वही बातें हो जाती हैं, वही काम हो जाते हैं। और वो सोचता है कि यहाँ पर कौन मुझे देख रहा है, कोई मेरा भाई, कोई मेरा बाप, कोई मेरा बड़ा नहीं देख रहा, मैं यहाँ पर सारे अपने काम सर अंजाम दूंगा और फिर जाकर घर में बड़ा अच्छा बन जाऊंगा। कोई नहीं किया मैंने तो, कुछ भी नहीं किया मैंने तो। आज हम सीखें, पिछले दिनों के अंदर, शुरू के अंदर एक ऐसा भाई था जिसके बारे में हम बड़ी खुशी की बात कर रहे थे, बड़े दलेर हो रहे थे, बड़ी खुशी कर रहे थे कि उसने भी अपनी जिंदगी को बदल लिया, नशे छोड़ दिए और उसने भी अपने आप को बदल लिया, इबादत में आ रहा था, दुआ कर रहा था। लेकिन दर हकीकत उसके अंदर से, उसके दिल को जो चोट लगनी थी कलाम की, वो नहीं लगी थी। वो ऊपर ही ऊपर से ये ख्याल कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, टीम का हिस्सा बनूंगा, इबादत में जाऊंगा, दुआ करूंगा। वो दर हकीकत उसके ऊपर के ख्याल थे और फिर कच्चे ख्याल थे और ऐसे ख्याल नहीं थे कि जिनको इब्लीस को शर्मिंदा होना पड़े। और वो फिर उसी इब्लीस के हथकंडे में आ गया और फिर बेकामी में आकर वही बातें कर रहा है, वही बोतलें, वही गलियां, वही दोस्त, वही सारे मामले। तो मेरे जीजो, खुदा का बंदा बयान करता है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। वो ऐसे छलावे बयान करती है, हमारी आंखों के सामने ऐसी झूठी तस्वीरें इब्लीस लाकर बयान करता है, झूठे ख्याल लगाता है, हमें वर्गलाने के लिए, हमें फुसलाने के लिए, गिराने के लिए, मौत के मुंह में ले जाने के लिए, बद किरदारियों और गुनाहों में डालने के लिए ऐसी बातें डालता है, ऐसी ख्वाहिशें डालता है कि वो इंसान जो उस जवानी के आलम में होता है बड़ी जल्दी मायल होकर गुनाह में गिर पड़ता है। मेरे जीजो, यहाँ पर लिखा है जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। किन के साथ? जो रास्तबाजी और ईमान से और मोहब्बत से खुदा से दुआ करते हैं उनके साथ सुलह का तालिब हो। उनसे ताल्लुक रख। ताल्लुक किन से रखना है? जो दुआ करते हैं, जो रास्तबाजी को पूरा करते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, जो कलाम सुनाते हैं और जो खुदा के कहे हुए हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसकी रोटी तोड़ने और शराकत रखने में और रफाकत रखने में और जमा होने में और दुआ करने में और रोज़ा रखने में हमेशा सरगर्म रहते हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक रख।
तो फिर क्या होगा, तू अपनी जवानी की ख्वाहिशों से बच जाएगा। जैसे हमने सीखा कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, और यहाँ पर पौलुस इसी बात को बयान करता है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत से सुलह का तालिब हो, उनके साथ अपना तल्लुक जोड़ ले। अगर तू चाहता है पाक होना, पाक दिल होना, और चाहता है कि मैं बदकारियों और बुरी बातों और बुरे कामों से छूटकर खुदा का तालिब हो जाऊं, तो अपना ताल्लुक बहाल कर ले खुदा के लोगों के साथ। खुदा के लोगों के साथ बैठना उठना मेल मिलाप रखना शुरू कर दे, क्योंकि जैसी सोसाइटी होगी, जैसा उठना बैठना होगा, वैसी आदतें वैसी रविश होंगी। बाज दफा तो कोई नशेई दो भाई जा रहे हो नशा करने वाले, तो तीसरा बंदा बेशक नशा ना भी करता हो तो जा रहा हो हंसी खुशी उनको बात करते हुए गली से गुजर रहा हो, तो बाद लोग सोचते हैं लगता भी लग पिया ऐसे पासे, क्योंकि वजह क्या है, वो उनके साथ जा रहा है जो नशा करते हैं। वो सोचते हैं कि ये इनके साथ जा रहा है, इनके साथ बैठा हुआ है, शायद ये भी नशा करना शुरू हो गया। तो खुदा का बंदा कहता है अगर तू इन जवानी की ख्वाहिशों से भागकर पाक और साफ और ईमानदार और रास्तबाज बनना चाहता है, तो अपना ताल्लुक किन लोगों के साथ बना ले, जो पाक दिल और रास्तबाज और दुआ करने वाले और खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले हैं, उनसे अपना ताल्लुक कायम कर ले। पहला यूहन्ना का खत और उसके दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे। पहले 13वीं आयत को खुदा के ज़ोर से पढ़ते हैं। लिखा है, ऐ बुजुर्गो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। इब्तिदा से खुदा का बेटा मौजूद है। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था, और वो बर्रा जो अबदी बर्रा है, जो अज़ल से ज़बा किया गया बर्रा है, वो अज़ल से खुदा के साथ तख्लीक के वक़्त भी मौजूद था। खुदा का बेटा तब भी मौजूद था जब कुछ नहीं बना था, जब दुनिया बनाई नहीं गई थी, जब दुनिया तख्लीक नहीं की गई थी, तो खुदा का बेटा मौजूद था। और जब कुछ भी नहीं रहेगा दुनिया के अंदर, तब भी खुदा का बेटा मौजूद रहेगा। और यहाँ पर बयान हुआ है कि ऐ बुजुर्गो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है तुम उसे जान गए। बुजुर्ग क्या हैं? उन्होंने यीशु मसीह से वाकफियत रखी हुई है, वो यीशु मसीह को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो यीशु मसीह को अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने निजात पाई हुई है, उन्होंने यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा हुआ है, उन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी हुई है। तो खुदा का बंदा कहता है मैंने तुम्हें इसलिए लिखा, मैं खुशी का इजहार करता हूं कि तुम जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बाप को जान गए। अब गालिब आना इब्लीस की सारी शफ्तों पर, उसके सारे हथकंडों पर, उसके झूठे बहकावों दिखावों पर और उसकी सब बातों पर गालिब आना, ऐसे हमारे बस की बात नहीं है, जिस्म का काम नहीं है। जिस्म कभी हरगिज भी इब्लीस की सारी बातों पर गालिब नहीं आ सकता। कलाम अक़दस में लिखा हुआ है जिस्म जिस्मानी कामों को ज़ाहिर करता है और रूह जो है वो रूहानी कामों को। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जिस्म रूह के मुखालिफ काम करता है और रूह जिस्म के मुखालिफ काम करती है। और जिस्म में रहकर जिस्मानी होकर हम इब्लीस पर कभी गलबा नहीं पा सकते, इब्लीस को कभी नहीं हरा सकते। जब तक हम रूह में आकर रूहानी नहीं बन जाते, तब तक हम इब्लीस पर गलबा नहीं पा सकते। और कलाम अक़दस में लिखा, बस खुदा के ताबिया हो। अपनी जवानी के दिन अपने ख्याल, अपनी सोचें, अपनी रविशें, अपने दिल और अपनी सारी बातों को खुदा के ताबिया करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मैं अपने जिस्म, रूह, बदन, जान को, दिल की बातों, ख्यालों को, पूरे जिस्म जान को खुदा तेरे ताबिया कर देता हूँ, तेरे हाथ में दे देता हूँ, तेरे कंट्रोल में देता हूँ। जैसी तेरी मर्जी हो तू मुझे उसी तरह इस्तेमाल कर। जब हम खुदा के ताबिया हो जाते हैं तो फिर हम इब्लीस की सारी रविशों पर गालिब आ जाते हैं। और खुदा का बंदा कहता है मैं खुश हूँ है जवानों, क्योंकि इसलिए तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि तूने क्या किया है, उस शरीर पर गालिब आए हो।
कैसे आए हो? खुदा के ताबिया होकर, खुदा की बातों को मानकर और खुदा के ताबिया रहकर, अपना आप खुदा को देकर, खुदा के ताबिया होकर इब्लीस पर गालिब आ गए हो। मैं इससे खुश हूँ। ऐ लड़को, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बाप को भी जान गए जिसने मुझे भेजा, जो यीशु मसीह को भेजने वाला, जो यीशु मसीह का बाप है और मसीह में हमारा भी बाप है। अब 14वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम मजबूत हो। अब हम मजबूत कैसे हुए हैं? जो जवान, जो टीम के जवान है, जो बहनें बेटियां टीम के हिस्सा हैं, जो कलीसिया के हिस्सा हैं, वो मजबूत कैसे हुए हैं? उनके जहन और उनके ख्याल और उनकी जिंदगियां, उनकी रविशें, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान, उनके दिल पाक कैसे हुए हैं? खुदा की हिकमत और तरबियत वजीर बातों को और खुदा की तनबीह की बातों को रोज कलाम मुकद्दस में से सुनकर। जितनी हम खुदा की जुरी से तरबियत लेते हैं उतना हम निखरते हैं, उतना हम पाक साफ होते हैं। हमने काफी 2-4 महीने पहले इस मिसाल को सीखा था। एक ऐसी बाल्टी के अंदर एक ऐसा गंदा और बिल्कुल गलीज पानी भरें जो आपको महसूस होता है कि ये बिल्कुल गंदा पानी है, और उस पानी को आप नल के नीचे रखकर ऊपर से नल को खोल दें, और ऐसा होगा कि कुछ वक्त गुजरने के पास उस बाल्टी में से सारा गंदा घिनौना और जितना भी गलीज पानी है वो निकल जाएगा और उसके अंदर बिल्कुल साफ और पाक पानी रह जाएगा। बाकी सारे का सारा पानी उसमें से बाहर चला जाएगा। वजह क्या हो रही है कि ऊपर से मुसलसल मतवातर लगातार साफ पानी उसके अंदर जाता जा रहा है और वो गंदा पानी आस्ता आस्ता उसमें से निकल गया। अब जो हुआ है, तुम कैसे मजबूत हुए हो, तुम कैसे खुदा के कलाम में मजबूत हुए हो, कैसे सीख गए हो, कैसे शरीर पर गलबा और इब्लीस पर गलबा पाने वाले बन गए हो, कैसे तुम दुआ के अंदर मजबूत हो गए हो, कैसे तुम रास्तबाजी ईमानदारी को पूरा करने शुरू हो गए हो, और कैसे जब तुम इकट्ठा होकर दुआ करते हो तो खुदा तुम्हारे वसीले से बहुत सारी गवाहियां लेकर है। वजह क्या हो रही है कि वो जो कलाम डेली हमारे अंदर जा रहा है, हमारी शहवतें, हमारी बदकिरदारियां, हमारे हसद, हमारे फिरके, हमारी झूठी बातें, हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े हमारे अंदर से बाहर जा रहे हैं। कलाम अंदर जाता जा रहा है और ये बातें बाहर जाती जा रही हैं। कलाम अंदर जा रहा है और इब्लीस की बातें बाहर जा रहे हैं, इब्लीस के ख्याल और जवानी की ख्वाहिशें बाहर जाती जा रही हैं। कलाम अंदर जाता जा रहा है, हमें पाक करता जा रहा है, हमारे अंदर से गंदी घिनौनी बातें बाहर निकालता जा रहा है। तो खुदा का बंदा कहता है, ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम मजबूत हो, और मजबूत होने की वजह हमने दरियाफ्त कर ली है, और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है। अब क्या हो रहा है, जब तुम कलाम सुनते हो और जब सुनते हो तो सुनकर गौर करते हो और फिर वो कलाम तुम्हारे अंदर कायम रहता है, और जब कभी तुम दुनिया के मामलात में पढ़ते हो तो फौरन तुम्हारे दिमाग की घंटी कलाम बजा देता है, ये काम तुम्हारे वाला नहीं है, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, ये काम तेरे करने वाला नहीं है, ये काम गलत है, ये कलाम के मुखालिफ है, ये यीशु मसीह के मुखालिफ है। कलाम में तूने सुना होगा, ये काम तेरे करने वाला नहीं है, ये गलत काम है, ये घिनौना काम है, ये गंदा काम है, ये गलीज काम है, तूने नहीं करना। फौरन से घंटी कलाम की अंदर ज़हन के अंदर आ जाती है। और खुदा का बंदा कहता है, मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब तेरा कलाम मेरे अंदर रहेगा, मेरे दिल के अंदर, मेरे ज़हन के अंदर काम करता रहेगा, चलता रहेगा, मजबूत होता रहेगा, मैं किसी बुराई के अंदर, किसी बदी के अंदर फंस नहीं सकता, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता, मैं पकड़ा नहीं जा सकता, मैं शरीर के फंदे में नहीं आ सकता, मैं सियाद की जो लगाई हुई उसकी फंदा है उसके अंदर कैद नहीं हो सकता। वजह क्या है कि मेरे दिल के अंदर, मेरे ख्याल के अंदर तेरा कलाम बसा हुआ है, मैं उसका शिकार नहीं हो सकता, मैं उसके हाथों पकड़ा नहीं जा सकता। और खुदा का बंदा कहता है, तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है, और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। कैसे आए हो गालिब? कलाम की वजह से, कलाम सुनकर, जानकर कि कैसे इब्लीस पर गलबा पाना है, कैसे उसको हराना है और कैसे उसके ऊपर गलबा पाकर खुदा की ज़रूरत में बढ़ना है। आज मेरे चीजों, कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर है।
अब जंग के अंदर जो जवान फौजी होता है, जो जोर के अंदर होता है, जो कुव्वत के अंदर होता है और जो वेल ट्रेंड होता है, जिसने अच्छी तरबियत ली होती है, उसके हाथ में अगर तीर हो और उसकी कमान जो है वो थैला उसका तीरों से भरा हुआ हो और वो जंग के मैदान में उतरा हो, तो आप तसव्वुर करें कि वो कितने लोगों को हलाक करेगा, कितने लोगों को मार गिराएगा। और खुदा का बंदा कहता है वो जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त फौजी और जबरदस्त लड़ने वाले तीर अंदाज के हाथ में तीर है, और वो अपने तीरों से निशाना बांधकर उन लोगों को जो दुश्मन हैं, जो मुखालिफ हैं, उनको निशाना बांधकर एक एक को हलाक करता जाता है। ऐसे जबरदस्त की मानद जवानी के फर्जंद हैं। और जवानी की खिदमत को खुदा बहुत पसंद करता है, जवानी की तौबा को खुदा बहुत पसंद करता है। अक्सर हम बाजार से जब फल और सब्जियां खरीदते हैं और हम जब उनके पैसे देते हैं तो हम शॉपर को चेक करते हैं, जो सब्जी और फल गला हुआ और ख़राब और सड़ा हुआ हो हम फ़ौरन से निकाल कर उसके मुंह के आगे फेंकते हैं। अल्लाह पाई फाड़ तू सानू खराब ही दे छड़े ने, अही गले की करने ने, असी पैसे ही देते हैं। मेरे बहन भाइयों, आपकी भी कीमत दी गई है और खुदा आपकी जवानी की खिदमत को, जवानी की तौबा को पसंद करता है और खुश होता है ऐसी बात से। और लिखता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर है, वो जंग के अंदर उतरता है तो हजारों को नेस्त कर देता है। और एक ऐसा जवान भी था कि जिसके हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी थी, उसने कितनों को मार गिराया। तलवार भी नहीं है, भाला भी नहीं है, तीर भी नहीं है, जंगी हथियार भी नहीं है, सिर्फ गधे के जबड़े की हड्डी है। और उसने कितने दुश्मनों को मार गिराया, कितने फिलिस्तीनियों को मार गिराया, हजारों के हजारों। सिर्फ वो जवानी का फर्जंद है और उसके अंदर खुदा का जोर है। समसून के अंदर किसका जोर था? खुदा का जोर था। और उसे भाले और तलवार की जरूरत नहीं पड़ी है, उसको जंगी हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी है, उसको जंगी साजो सामान पहनने की, लिबास पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। एक जबड़े की हड्डी मिल गई है और उसने हजारों के हजारों दुश्मनों को मार दिया। कलाम कहता है जवानी के फर्जंद ऐसी है। खुदा जवानी की खिदमत को और जवानी की तौबा को बड़ा पसंद करता है। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि दाऊद भी जवानी के अंदर था जब उसने जाती जूलियत को मार गिराया, उसका सर धड़ से अलग करके इसराइली को कहता है कि देखो खुदावंद की फतह। वो भी जवानी के अंदर था। और आज हम देखें कि खुदा के बंदा ने एक बड़ी ही जबरदस्त बात हमारे सामने रख दी है। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। और दाऊद भी कहता है ज़बूर 25 उसकी 7वीं आयत के अंदर, मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। उसने हाल बता दिया कि कैसे बचना है, कैसे पाक होना है, कैसे खुदा से माफ़ी मांगनी है, कैसे अपनी रवशों, अपने ख्यालों को बदलना है जो बुरे हैं, जो खुदा से दूर करते हैं, और उनको बदलना कैसे है, हाल बता रहा है। लिखता है मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। असल में दर हकीकत ये एक माफ़ी की इल्तिजा, ये असल में एक ऐसा इकरार है। इस इकरार के बाद फौरन से खुदा उसको माफ करने वाला है, उसकी जवानी की सब खताओं को मिटाने वाला है, बख्शने वाला है और खत्म करने वाला है, और फिर उसको अपना फर्जंद बनाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। मेरे ख्याल में जब वो जाति जुलत का मुकाबला करने वाला था तो शायद उससे पहले की ये बात है, जब वो जवानी के अंदर है, मुकाबला करने से पहले उसने अपनी सोच को खुदा की ज़ुल्म में रखा और कहता है मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। दर हकीकत ये एक माफ़ी है और इकरार है। और आगे लिखा है, ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा, ताकि मैं अपनी तमाम गलतियों से बच जाऊं, आज़ाद हो जाऊं और मैं फिर तेरे मुताबिक चलकर तेरी रास्तबाजी, तेरी ईमानदारी को पूरा कर सकूं। तो ये बड़ा अच्छा नमूना है कि हमें इस बात को मानकर अपनी अपनी सोच के अंदर, अपने अपने दिल में आज
खुदा की हुजूरी में कलाम को सुनने के बाद ये अमल करना है, ये दोहराना है और इकरार करना है खुदा की हुजूरी में दाऊद के साथ मिलकर कि अगर खुदा जवान होते हुए जवानी के आलम में हमारे जिंदगी से कोई गलतियां खताएं हो चुकी हैं तो हम इस बात में ये इल्तिजा करते हैं कि हमारी जवानी की खताओं को और हमारे गुनाहों को याद ना कर बल्कि इकरार करके हम चाहते हैं कि तू उनको बदल डाल, हमें हिम्मत बख्श, कुव्वत बख्श कि हम जब कहते हैं हम तौबा करेंगे बदल जाएंगे तो हमें इस पर अमल करने और पूरा उतरने का फजल भी अता कर। तो ये इकरार करके यहाँ पर वो कहता है अपनी नेकी की खातिर और अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा कि मैं बच जाऊं, मैं पाक साफ किया जाऊं, मैं धोया जाऊं और मेरी सब खताएं माफ हों और फिर मैं उस अब्दी हलाकत से बच जाऊं जहां पर लिखा हुआ है कि याद रख कि इन सब बातों के वसीला से तुझे खुदा अदालत में लाएगा। करने के लिए काम, सोचने के लिए काम बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान और सीधा मालूम होता है, लेकिन उसकी इंतहा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदालत और मौत है। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। उसके पसे पर्दा, उसके पीछे मौत छुपी हुई है। देखने के लिए, समझने के लिए बड़ा आसान है, बड़ी अच्छी तस्वीर है, खूबसूरती है, सारा कुछ है, लेकिन ऐन उसके पीछे, पर्दे के पीछे मौत है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज ख्याल करें कलाम अक़दस के वसीला से अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी रविशों, अपनी जवानी के याम पर गौर करें और अपने खुदा के मुताबिक जैसा हमें खुदा चलाना चाहता है, जवानी में इस्तेमाल करना चाहता है, जवानी की तौबा को कबूल करता है, पसंद करता है, तो आज ही से इकरार करके हम कहें अपना आप खुदा को दे दें, अपना दिल, अपनी सोच, अपनी अक्ल, अपने रूह बदन जान, हर एक चीज़ खुदा को देकर अपने खुदा से कहें कि मेरी जवानी की खताओं को याद न कर, अपनी नेकी और अपनी शफकत के वसीला से मुझे याद फरमा कर मुझे पाक कर दे। तेरा शुक्र जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी। कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी चंद अल्फाज के साथ करते हैं बैन शनीला के साथ। यहोवा पाक, खुदा पाक, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए। यहोवा पाक